Right. Okay, so I just want to know about your targets. Like all of you are in Canada. So honestly, this is my first ever smallest batch, first in my life. So why there are reasons. Okay, so there were 4 or 5 more students. They actually recently shifted to my hybrid one-on-one coaching thing. But because okay, that I will tell you later. Few reasons. I just want to know what all are your targets. Of course, all of you are planning to take FTCF, the exam for your PR, Canada PR. So, is there anybody who's targeting NCLC 5? No, Maybe in like CLB 7. 7. 7, yeah. 7. 7. So all of you have like time period, मतलब है अच्छा time, Yeah. हाँ. 1 year, Yes, like ma'am. okay. Yes. 1 year है, but we are thinking, मतलब for me it's like कि अगर जल्दी हो जाए 7-8 month, 7-8 months में तो. Not for you, with everybody. So I'm just asking because I mean, of course, everybody wants to take exam as soon as possible. Even I feel like you should learn the language properly and do it, give it, and get rid of it. है ना? So, all right. Sorry, ma'am, for interrupting you. I just want to know, like you already had the 6-month batches. Hmm. So, like, students, how long did they take to score 7 bands? Okay. Okay, right question, good question. See, so honestly, मैं अपने Instagram channel पे भी बार बार आके काफी बार बोलती हूँ. All of you understand Hindi, right? Nobody is from South or you understand Hindi as नहीं, well. ma'am. Yes, yes. You are comfortable in Hindi, all of you. Yes, ma'am. Yeah. Yeah, okay. There has to be one more student. I don't know. She hasn't yet come. So abhi tak to there are only four of you. As I said, it's the smallest ever batch. Every time my batch used to be more than 12, 15. Abhi bhi isme 8 the, but 4 of them have shifted, and now one is in the middle of it. So she probably will go for the hybrid approach. Now, as you were asking, key 6 months mein how many students? Honestly, group coaching. Uh, so आप क्योंकि पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ. I am not someone who believes in telling lies, or I never want to misguide you. और so it is a group coaching, right? मैं अभी instructions आप लोगों को देती that how you really need to participate in the group. Now participation is very important. ठीक है? If you are participating in the group, you are understanding things, you are doing what I'm saying, you are following what I'm saying, then you will definitely develop that uh, that thing which is required for the exam. ठीक है. बट ग्रुप्स में क्या होता है जनरली, शुरुआत की क्लासेस में तो यू विल बी एक्टिव. ठीक है. यू विल पार्टिसिपेट बिकॉज यू आर ऑल बिगिनर्स, तो आई विल ऑल्सो टेक द थिंग्स अ बिट स्लोअर. ठीक है. I will teach you sounds. We will take grammar topics. You have to practice. Now I understand all of you are working. Okay, everybody has their own lives. Time zone भी different है. मेरे ख्याल से you are in New Brunswick, तो आपके लिए तो बहुत late है ना, अर्षिता. तो regular practice is important. If you are in a constant touch with the language, you are practicing, you are participating in the class, which is the foremost thing. That is what matters. So group mein, I will teach you, of course, I focus a lot on the listening skills as well. So when I teach you grammar, in between I do take some listening comprehensions as well, so that you know how to apply those grammar topics as well. नहीं तो क्या होगा अगर हम ग्रामर ही करते रहेंगे. Yes, A1 A2 ग्रामर इज इम्पोर्टेंट. शुरुआत में ग्रामर ज्यादा करनी होगी, लिसनिंग थोड़ी कम होगी, बट स्टिल आई विल गिव यू द रिसोर्सेज
I'll tell you how to practice. So it is a language, it's a constant process, it's a regular participation, it's active participation, it's more than what you are attending in the class. So if you are like, I am giving 2 classes a week, 3 hours a week, 1.5 hour session. But जो remaining 5 days हैं, you have to devote time, 1 hour, 2 hours. ठीक है. Apart from that, group में if you say कि कितने लोगों ने 6 months में clear किया है, group में there comes a certain point of time when you have to opt for individual coaching. ठीक है, मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है, आप लोग ना अभी तो बोल रहे हो, आप आज बोल, यू विल फील शाय, मतलब you'll remain on mute. तो अगर आपने म्यूट पे रहना है, ठीक है, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग, इट इज योर लॉस. I always encourage you to speak, 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 speak. मैं पूछूंगी, आप बोलेंगे, it is then you are on a better side. But if you just keep yourself on mute, you are just taking down notes. एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कभी कि only the trainer is speaking, you are all silent. तो अगर वो आप कुछ टाइम बाद if you are like that, then will not be able to track your progress. मुझे पता नहीं लगेगा whether you are understanding the topic also or not. So if you are having doubts, if you are having questions, if you practice something, not just what material I give you, but if you, let's say, do something on Duolingo, if you खैर YouTube तो बिल्कुल नहीं देखना है. I'm not advising YouTube to any of you. Please don't listen anything on YouTube. YouTube खोलना ही नहीं है. Whatever material I'm giving you or maybe I'm recommending you, just follow that because हम अभी beginners हैं. YouTube सिर्फ वही सुनते हैं जो who know the language, and अगर हम सुनेंगे तो हमें कुछ समझ में भी आना चाहिए, right? So I can listen to YouTube, but I never do. I honestly in my life, if you ask me YouTube पे channels कौन से हैं recommend कर दो, I cannot recommend you because there are many channels. मैं इंस्टा पे भी ऐसी कोई रील वगैरह डालती भी नहीं हूँ जहाँ पे आई एम एडवाइसिंग यू फ्यू वेबसाइट्स, और बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई फील कि हम लॉस्ट हो जाएंगे. मुझे कोई कहेगा ये 5 वेबसाइट्स हैं, ये अच्छी है, बट यू डोंट नो, आई मीन हमारे लिए वो अच्छी है बट आपको नहीं पता है क्या करना है. सो डोंट वॉच यूट्यूब वीडियोज. नाउ यू कैन ऑल्सो स्टॉप डुओलिंगो, क्योंकि प्रैक्टिस ग्रामर. सो जो आप कह रहे हैं 6 months में ग्रुप में, if you remain silent after a certain period of time, if you're not participating, then of course you will not have that confidence to sit for the exam. But if you're regularly participating in the class, you are speaking, you are engaging. क्योंकि one more thing, ask me whatever you want to, जहां से भी जैसे भी. I have answers to all your questions. I mean, you can extract a lot out of me, but अगर एक silent, if you remain silent, then it will be a problem. जो मर्जी आपने फ्रेंच रिलेटेड पूछना है, ask me any questions, any doubts, anything, ask me. I am not someone कि मैं चैट जीपीटी या मेरे को खुद ही नहीं पता होगा. I will have answers to all of your questions, A1, A2, B1, B2, C1, C2 as well. ठीक है, I have done masters also in French. I'll be able to answer to all of your questions. TEF TCF, I do have expertise in these exams. I know very, very good, amazing strategies, and I never actually teach for NCLC 5. I always give you the strategies. I always teach you for NCLC 7+. मैं आपको NCLC 8-9 की strategies बताऊंगी. Then you will be able to score NCLC 7. So as far as the group concerned, so जितने मेरे ऐसे groups हुए हैं, maybe after a certain period of time, when I feel the students are participating, there are students from Montreal, Quebec. So क्योंकि French is spoken there, तो कुछ students जैसे already they speak French, उनको थोड़ा knowledge होता है, and they participate in the class, and I feel like yes, they can do it. So I do encourage them. And then I personally say them, if you really want to
get NCRC 7, just take 1 or 2 months of one-on-one coaching. We will work on your weaknesses, strengths, and then only book your exam. Okay. Now, I'm not someone money hungry or आई एम नॉट दैट, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ठीक है. सो बट आई विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस, ठीक है. तो आई विल अगेन से ग्रुप में पढ़ पढ़ के और मतलब पढ़ने के बाद स्टिल यू विल नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू सिट फॉर द एग्जाम. एक समय पे आपको वन ऑन वन लेना पड़ता है. वाई? नॉट बिकॉज की मतलब टीचर इज दिस थिंग, मनी वनी कुछ नहीं है. बिकॉज यू देन you will know where your weaknesses are you able to pronounce correctly, आपकी के pronunciation में problem है, थोड़ी strategies है, तो one on one you already know, so it is more individualized. And then when you are ready, when you are set for the exam, then आप 2 महीने में मतलब then I'll tell you कि भाई हाँ अब आप you are ready to book the exam. हमेशा first attempt should be your fully prepared attempt. नेवर एवर डू दिस मिस्टेक इन योर लाइफ. हमने तो A1 A2 B1 टू B2 तक ग्रामर कर लिया, ग्रुप कोचिंग कर लिया, चलो अब हम ऑनलाइन चेक करते हैं, हाँ हमें डेट मिल रही है, चलो बुक कर देते हैं. इफ यू डू दिस मिस्टेक, इफ यू बुक द फर्स्ट एग्जाम जस्ट बीइंग 50-60% प्रिपेयर्ड, क्या होगा उस वक्त? ऑफ कोर्स चलो ठीक है, आपको माइंड में ये पता होगा कि हाँ आपको ये पता होगा कि NCLC 7 के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, बट चलो दे देते हैं जाके. पीपल आर डूइंग दीज डेज एंड आई नो व्हाट डिफिकल्टी स्टूडेंट्स इतना फेस नहीं जितना ट्रेनर को फेस करना पड़ता है. आपको ये पता होगा कि मेरे NCLC 7 तो नहीं आएंगे, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे. लेकिन ना एक बार आप दे दोगे ना, फिर आपको ना एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब मैं दूसरा एग्जाम 2 महीने बाद ही दे देती हूँ. देन यू again search for the dates, you book the and then you find tutors in between कि मैंने एक बार दिया हुआ है, मेरे NCLC 4 आए हैं, मेरा A2 उसमें आया है, B1. ये करना ही नहीं है. Always your first attempt should be a very thoroughly prepared attempt. हमको 8 के लिए प्रिपेयर तैयार होके पहला अटेम्प्ट देना है. वंस यू टेक दैट फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी सिर्फ यहाँ पे गलती थी, हाँ मेरे को I couldn't react when the examiner was asking me the question. Then you will discuss that thing with your trainer, ऐसा हुआ वैसा हुआ. We will focus there. फिर आपको तब लगेगा ना हाँ मैं दूसरा के लिए रेडी हूँ. सो ऑनेस्टली इन माई हाइब्रिड वन ऑन वन वाला जो मेरा एक प्रोग्राम है, there I do sit my students in just the 4th month, 5th month of coaching. Okay, you can see all of my feedbacks, reviews on my Google, Instagram, whatever I put, all of them are genuine, 100%. I never ever fake anything. वो लेकिन hybrid plus one-on-one, that is a different program. In that I offer pre-recorded version and simultaneously we do one-on-one coaching. For example, you watch 3-4 videos in maybe 10-12 days and then we have one-on-one this thing and then we work कि आपको ये सब then that's we do a lot of listening and speaking. So to be honest मुझे A1 A2 B1 मतलब ये ग्रामर पढ़ाने में सच में मजा नहीं आता. मतलब मुझे हाई लेवल ज्यादा मतलब मुझे आई रियली लाइक टू टीच मोर ऑफ B2 और एग्जाम ओरिएंटेड मतलब स्पीकिंग. एंड सो आई ऑलवेज टेल कि somebody who approaches me, मैं बोल देती हूँ कि आप मेरा प्री रिकॉर्डेड वर्जन ले लो और साथ में वन ऑन वन करो, आई विल मेक यू सिट बैक. लेकिन अब फिर से आई वांट टू बी ऑनेस्ट, मार्केट का जो ट्रेंड है हमें चलना पड़ेगा उसके साथ. तो मार्केट में ट्रेंड है ग्रुप कोचिंग का, तो मुझे भी ग्रुप कोचिंग लॉन्च करना होता है. इस बारी August 8 का मैंने एक्चुअली लॉन्च बिल्कुल मन में नहीं था, बट बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे तो आई थिंक आई फोर्सबली लॉन्च्ड इट. और एज आई सेड यू स्ट्रेंथ भी इतनी खास नहीं है, पर ठीक है, योर लो स्ट्रेंथ बेटर यू इन्वॉल्व, यू पार्टिसिपेट इन द क्लास. तो
इट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड ही हो गया एक तरह से. Yes, Drishti, you can ask. You have a question. Yeah, you're saying कि हाइब्रिड वाला जो है, आई फील हाँ, लाइक कि आपस में मतलब आपस में बहुत कॉन्फिडेंट है उस चीज में कि लाइक हाइब्रिड में और उसके बाद वन ऑन वन में ज्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं, तो इज दिस कैन आई स्विच इफ, बिकॉज आई वुड लव दैट, पर मुझे पता नहीं था कि वो ऑप्शन है आपके पास या नहीं है, बिकॉज एक्चुअली दैट वुड यू नो एक्चुअली. जब हाँ स्टूडेंट्स मुझसे इंक्वायरी करते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो जब मेरे पास बैच नहीं होता है अपकमिंग, मैं उनको हमेशा एक मैसेज भेजती हूँ. आई करंटली आई एम नॉट रनिंग अ ग्रुप, देयर इज हाई. बट क्योंकि फिर मतलब वही है कि आई डू एडवाइस पीपल. एक बारी बात देखिए, आई अंडरस्टैंड कि फ्रेंच करना अब मजबूरी है ना. मतलब ऑफ कोर्स मैं भी नहीं चाह, कल को कोई मुझे बोलेगा स्पेनिश सीखनी पड़ेगी तुझे ये पाने के लिए, तो आई एम वर्किंग फुल टाइम. आई हैव माई फैमिली, आई हैव हस्बैंड, आई हैव फैमिली, मेरे को घर के भी काम कर रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड दैट पेन विच यू गाइज आर हैविंग. तो अगर कोई मुझे भी बोलेगा आज तो आई डोंट थिंक सो आई विल डू. कोई मुझे बोलेगा मेडिसिन डॉक्टर कर ले, पढ़ ले, मैं नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि सो देर आर टू थिंग्स. एक होता है फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बोलेगा मेडिसिन पढ़ने के लिए, तो मैं तो जिंदगी में नहीं पढ़ूंगी, शायद मैं वो प्लान ही ड्रॉप कर दूंगी. क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती ना. मुझे मेरा वो साइंस डोमेन नहीं है. मतलब मैंने कभी जीवन में स्कूल में नहीं पढ़ा फिजिक्स में. आई कैन से आई हैव नेवर एक्चुअली, आई वाज नेवर अ यू नो फिजिक्स साइंस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट. तो आप लोगों को लेकिन अगर मुझे मजबूरी में करनी पड़ेगी, तो शायद मुझे मेडिसिन थोड़ी बहुत करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, समझ में नहीं आएगा. बट हाँ, उस वक्त के लिए मैं ग्रुप कोचिंग ऑप्ट करूंगी कि चलो आई विल सेव हियर. बट अगर मेरे को है कि, तो देर आर पीपल जो कि, कई लोग लैंग्वेज ग्रास्प कर लेते हैं, मतलब सबका होल्ड नहीं होता है. सी, एवरीबडी कैन नॉट लर्न द लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट. ठीक है. तो तो अभी आप लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको लगे यार नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब निकल रहा है, वर्ड ही क्लियरली प्रोनाउंस नहीं हो रहा. तो उस केस में ग्रुप कोचिंग ठीक है. चलो आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया. बट अगर सच में, हाँ, अब जैसे आप लोगों ने डुओलिंगो देखा है, किसी ने यूट्यूब में कुछ सुने होंगे, फ्रेंच के वर्ड्स कभी कान में गए होंगे, तो शायद अगर आप क्लियरली जैसे बोंजूर उसको प्रॉपरली बोल रहे हो, तो हाँ, आप उस चीज को एसिमुलेट कर पा रहे हो, एंड यू आर एबल टू यू नो pronounce that thing. That means you have that caliber to learn the language. तो वन ऑन वन और प्री, इसमें हाइब्रिड में बस यही होता है कि यू वॉच. तो अगेन, जो मैं अभी आपको क्लास में, लाइव क्लासेस में एक्चुअली जो मैं कराऊंगी, वो देखिए, मैं माय फर्स्ट, सो आई विल नॉट ओपन द, जो आप ये चेंज करने का कह रहे हैं, मैं आपको एक बारी डिटेल्स भेज दूंगी. सो ओके. ऑलवेज, ऑल ऑफ यू ऑलवेज टॉक टू द ट्रेनर्स, और जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हैं, आप बात करिए. मतलब कॉल कंसल्टेशन बुक करिए, या आप बात करिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, देन चूज द कोर्स. क्योंकि अब सब, आप लोग तो खैर सारे ही कनाडा में हो. अ, तो अब तो काफी काफी लोग इंडिया में आ चुके हैं. अर्लियर आई यूज टू गेट 90% क्वेरीज फ्रॉम कैनेडा. अब उल्टा हो गया है. 6-8 महीने से आई कैन से, और 90% of queries, I can say 80% of queries I'm getting from India, and most of them are who have come back from there. तो हाइब्रिड वो मैं आपको भेज दूंगी. यस, सो जो आप अर्शिता क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो उसी से पॉसिबल है. 5th या 6th मंथ में आप थरोली फुल्ली प्रिपेयर्ड होके, आप पहला अटेम्प्ट मैं तभी दिलवाती हूँ. आई विल नेवर एवर से यू की B1 करने, हाँ आप दे सकते हो. आई नो ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनर्स देयर इन कैनेडा. मेरे को सबके नाम पता है. सो मोस्ट बहुत स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, जो जो आई नो, आई मीन गुड गुड इन्फ्लुएंसर्स हर प्रोविंस में. आई नो इट. सो आई डू हैव स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि वो कैसे पढ़ाते हैं.
तो वो अगर आपने, I mean, I can say you are lucky enough to join me, but again, just extract whatever you can extract during the class. तो प्लीज बोलिए क्लास में, स्पीकिंग करिए। शुरुआत की मेरी 2-3 क्लासेस ओनली प्रोनाउंसिएशन पे होंगी। मैं ग्रामर नहीं स्टार्ट कराती हूँ बिगिनिंग से। आई विल बी टीचिंग यू साउंड्स। आई वॉन्ट यू टू रीड द बेस्ट वे इन फ्रेंच इन जस्ट 10 days। दिस इज वॉट माई मोटिव इज। अगर आपको 1 महीना भी लग रहा है वर्ड सही पढ़ने में, नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ले फ्रांसे, तो हमको, आई विल टीच यू दिस इन द इनिशियल क्लासेस, एंड आई मीन दिस इज देयर इन माई प्री रिकॉर्डेड एज वेल। बट मैं आपको, आई टुक माई स्पोकन वर्कशॉप आई थिंक 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले। सो दोज वर माई प्राइवेट वीडियोस लॉग्ड ऑन यूट्यूब, बट मैंने उसको ओपन कर दिया है काफी साल, 2-3 साल से, बिकॉज आई कैन सी पीपल स्ट्रगलिंग अ लॉट इन स्पीकिंग। आप, सो साउंड्स एंड एवरीथिंग यू कैन वॉच, यू कैन मेक नोट्स, मैं फिर भी भेज दूंगी। खैर वो मैं आपको लाइव में कराऊंगी, मतलब लाइव में वही होगा, बट दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन माई यूट्यूब, ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल, द साउंड्स। ठीक है, अब ये क्या है, le Uh, français, niveau débutant, तो आई विल टीच यू दिस हाउ यू रीड। इफ यू आर रीडिंग प्रॉपरली, इफ यू आर रीडिंग लिटरली द फ्रेंच वे, तभी यू विल बी एबल टू स्पीक, नो। बट अगर मैं आप सिर्फ ग्रामर ग्रामर करते रहे, नीवो डेब्यूटेंट ल फ्रांसाई ऐसे ऐसे बोलते हुए अगर आपने B1 तक पहुंच गए, एंड वन डे यू से मैम मैंने ग्रामर करी हुई है B1 तक की, अब मुझे बस स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने जो 2-3-4 महीने वो A1 A2 B1 में जो वेस्ट किए हैं, वेस्ट बोलूंगी क्योंकि आपने कभी पढ़ना ही नहीं सीखा, और आपने टूटा फूटा, अभी आपसे पहले मेरी एक क्लास थी, वन स्टूडेंट जस्ट टुक, शी बुक्ड ओनली 1 सेशन जस्ट टू सी कि तो फिर उसका September 1st को एग्जाम है। शी दैट स्टूडेंट हैज ऑलरेडी अटेम्प्टेड द एग्जाम वंस। उसका अभी शी टोल्ड मी कि शी गॉट A2 मतलब NCLC 4 इन रीडिंग एंड स्पीकिंग, एंड लिसनिंग में NCLC 6 और SC 7। अब when I just before your class only, it was her session, so I asked her just to introduce herself. पूरी टूटी फूटी French. See, I'm not saying any negative about any, but what I'm trying to say is कि आपकी प्रोनाउंसिएशन एक ही बार बनेगी, आप एक ही बार अपना बेस बनाएंगे, आप बार बार स्विच नहीं कर सकते टीचर्स, आप बार बार नहीं, तो आपकी तो फिर ये जर्नी नेवर एंडिंग हो जाएगी, आपको 1-1.5-2 साल आप खींचते रह जाओगे। नाउ जिस स्टेज पे वो स्टूडेंट थी, नाउ शी हैज हर एग्जाम ऑन 1 September। ऑनेस्टली शी वॉज आस्किंग मी कि व्हाट, सब कुछ मैंने उससे बताया, 2-4 स्ट्रैटेजीज बताई जो मैं बता सकती थी एक सेशन में। समटाइम्स पीपल फील की, तो she asked me कि what do you think कि NCLC, तो I told her, I mean honestly, you are not prepared for NCLC 7, NCLC 5 भी मुश्किल है, मैंने ऐसे बोल दिया, अब मुझे नहीं पता था, so she was like कि I don't want to get demotivated। तो आई मीन आई एम समवन वेरी ऑनेस्ट। अब उसने मुझसे पूछा तो आई टोल्ड हर। तो मैं अभी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो पहली बार ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तो शी सेड कि अच्छा, अब क्या होता है कहीं, आज मैं काफी बात कर रही हूँ, नॉर्मली ग्रुप्स में इतनी बात होती भी नहीं है। सो देर आर मेनी ट्रेनर्स इन द मार्केट, जैसे जैसे अभी आई हैव एक्सपीरियंस इन माई प्रीवियस, आपके पहले जो क्लास हुई है, जैसे TCF और टेफ दोनों में यू हैव वन सेक्शन कॉल्ड डायलॉग। ठीक है, टास्क 2 ससे दियालॉग। तो टीचर्स विल, व्हाट ट्रेनर्स विल डू, दे विल गिव यू अ फॉर्मेट, ChatGPT से लेकर, तो खैर बहुत, मतलब बहुत ब्लंडर हुआ है इस वक्त मार्केट में, एंड दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू रटाफाई दोज एंड यू गो, एंड कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी NCLC 7 नहीं मिलेंगे इफ यू रटाफाई द थिंग, इट्स अ लैंग्वेज।
इट इज नॉट हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आपने क्वेश्चन देखे आंसर्स याद करे और लिख के आ गए या बोल कुछ भी, इट इज नॉट दैट. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड इट इज अ लैंग्वेज. अच्छा तो व्हाट मैं अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं. कुछ कुछ अब मैं इंस्टा पे ऑनेस्टली मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाने लगी हूँ, नहीं तो मैं कभी हिंदी में बातें ही नहीं करती थी, बट मैंने देखा है कि यू नो. सो व्हेन आई आस्क्ड हर टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, जैसे आप लोग आइल्स वगैरह दिए हुए हैं, आप लोगों ने सेल्फ पिप दिया हुआ है, दैट इज व्हाई यू लैंडेड टू कनाडा, राइट? सो जब आप आइल्स दिए हैं तो यू प्रेजेंटेड योर सेल्फ व्हेन द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ. तो आपने ऐसे ही बोला होगा ना, माई गुड मॉर्निंग, माई नेम इज शिवानी, आई लिव इन दिल्ली, रिलेटेड कंसर्निंग व्हाट आई. तो फ्रेंच बीच में आ जाता है मुझे. About my hobbies, I love to teach French, I love to cook food, and during weekends I go out with my friends. अब इंग्लिश बोलने के भी दो, मतलब सबका अपना अपना एक्सेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जिस एक्सेंट में बोला है, ब्रिटिश और अमेरिकन वट एवर. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग ड्यूरिंग वीकेंड. अब वो मेरी, मैंने जैसे सीखा है तो मैं वैसे बोल रही हूँ वीकेंड. बट कई स्टूडेंट्स बी, मतलब वीकेंड बोलेंगे, वो बोलेंगे. तो वो सबका अलग है. लेकिन अगर आप, तो व्हाट, इवन इफ आई एम स्पीकिंग इन सिंपल इंग्लिश, कोई मेरी इंग्लिश B2 लेवल की तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सादी इंग्लिश है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप करेक्टली बोल रहे हो. चैट बॉक्स पे नहीं, यू कैन स्पीक इन द क्लास. अभी मैं, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस, प्लीज स्पीक इन द क्लास. सो जैसे I'm saying my name is Shivani. I reside in Delhi. I'm married. It's been 5 years. During my weekend, I go here and there to do shopping. सिंपल बोल रही हूँ लेकिन सामने वाले को समझ में आ रहा है ना, दैट इज द स्ट्रैटेजी. बट अगर मैं इंग्लिश ऐसे बोलूं, मिया नम्मा इज़ा शिवानी ई लव इन, यू अंडरस्टैंड आई मीन, दिस इज व्हाट द लैंग्वेज इज. ड्यूरिंग को मैं बोल रही हूँ डरांग, वीकेंड को मैंने वाकिंड ऐसे बोलकर आ गई. तो आपको कहाँ से NCLC 7 मिलेंगे, कहाँ से आपको CLB 7 भी इंग्लिश में मिलेगा या 6 भी मिलेगा. आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी. हमको सिंपल भाषा में बात करनी होती है, हमको सिंपल बोलना होता है, इजी. जो हम हिंदी में बोलते हैं, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, बस वही फ्रेंच में जाके बोलना होता है. कुछ भी नहीं है. जस्ट यू हैव टू बी नेचुरल, यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, बस. अगर आपने मिया नम्मा इज्जा ऐसे बोलकर आए हो, तो जो बेसिक सेंटेंस है A1 लेवल का, माई नेम इज, उसको अगर आपने टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा बोलकर आ गए, तो आपको तो 5 में से एक मुश्किल से मिलेंगे ना, एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि समझ ही नहीं आया. दैट इज हाउ यू लैंड ऑन NCLC 4. दैट इज व्हेन यू गेट A2. विद देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन कनाडा, दे विल, मेरे पास तो, मतलब व्हेन दे ऑप्ट फॉर वन, वो हार के मेरे पास आते हैं. तो और कोई चारा नहीं है, फिर 1-on-1 ही हो सकता है. और एक बार आपने अगर ये टूटी फूटी फ्रेंच रीड करना की आदत बना ली, फिर उसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अंडू करने के लिए. टीचर तो खैर हमारा तो काम है, हमको तो करना ही है आपको करेक्ट. बट हम में भी उतनी मेहनत लगेगी, आपको तो डबल ट्रिपल लगेगी, कि फिर आप सोचोगे यार मैंने तो 6-7 महीने फालतू में वेस्ट कर दिए उधर. तो बट ऑनेस्टली यू लैंडेड ऑन अ करेक्ट प्लेस. मैं इसीलिए ये सब इतनी बातें कर रही हूँ बिकॉज आई हैव, ड्यूरिंग ये जो लास्ट की कुछ 1-1.5 साल में मैं जो देख रही हूँ what is happening with students, so I'm just telling you with my experience. So I hope you have understood what I'm trying to say. अभी कोई जल्दी नहीं है कि आप सारे ग्रामर टॉपिक्स आपको फटाफट आ जाएं. इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, ग्रामर प्रैक्टिस करनी होगी इफ यू आर अ बिगिनर. बट ये नहीं है कि बस क्या आंसर है, आंसर लिख दिया,
पूरा सेंटेंस भी तो पढ़ना है, पूरा उस वर्ड का मीनिंग भी तो देखना है। वोकैबुलरी कैसे डेवलप होगी, मीनिंग भी तो देखेंगे। दिस इज योर टाइम टू डेवलप द वोकैबुलरी एज वेल। फॉर दैट ऑल्सो आई हैव सॉल्यूशंस। यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक, या कैसे वो मैं आपको, आई विल गाइड यू, बट अगेन थोड़ा टाइम अब देना पड़ेगा। अब अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो क्या बोलते हैं, डिवोट होना पड़ेगा। Yes, please, you can ask the question. Unmute yourself. Hi, ma'am. Yeah, hi. Hi. My question is what is the difference between TCF and TEF? Because I'm very confused. Okay. So, difference between TEF and TCF. Yeah, so we have TEF and we have TCF. Okay, both exams are valid for your Canada immigration purposes. Uh, ठीक है, तो earlier I can say till 2022 or even 2023, I can say, or even 2024, TEF was very, very popular. Okay. TCF has now become very popular. मतलब अब TCF की सीट ज्यादा हो गई है, पहले TEF की होती थी. Both are valid for your Canada immigration purposes. Both are valid. Now, the difference, if we say the format, so the format is different. In TEF Canada, in your writing and speaking skills, uh, writing and speaking. In TEF Canada, you have 2 tasks to attempt. Okay, so In during that writing? 1 hour, writing and speaking. Okay. So you have to attempt 2 tasks in TEF Canada. But in TCF Canada, you have 3 tasks. Okay. So if I do something like this, then in TCF Canada, you have 3 tasks to attempt in your writing as well as speaking. Okay, then comes listening. Listening टेफ का कुछ अलग ही फॉर्मेट है, मतलब पहले इट वाज डिफरेंट, but then they changed, did some modifications in 2023 December. So audios are played only once. In fact, audios used to be played only once in TEF Canada, but पिछले साल there are certain questions or sections जहाँ पे वो they will play the audio twice, only 1 or 2 questions in TEF Canada. But TCF, it is strictly only one time ऑडियो, मतलब एक ही बार में वो ऑडियो प्ले करेंगे, देन ओनली यू हैव टू मार्क द आंसर्स. ठीक है, बाकी रीडिंग तो वही है, 1 आवर, उसमें भी 1 आवर मिलता है. सो द फॉर्मेट इज डिफरेंट, जैसे आपका आईएल्ट्स और सेल्टिक का फॉर्मेट होता है. सो यू जस्ट हैव टू बी अकस्टम्ड विद द फॉर्मेट, दैट्स ऑल. तो एंड अभी ऐसा क्या कुछ है है पहले. टीईएफ या टीसीएफ में से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं? रीडिंग में यू गेट, रीडिंग लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस ही है, मतलब योर आंसर्स, आंसर्स वो 4 ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर. वो दोनों का सेम है? All are MCQs. ओके. Yeah, all are MCQ. There is no subjective type of this thing. There is जस्ट no राइटिंग, subjective. राइट? Only writing, yes. ओके ओके. Hmm. And it is pen paper based or only computer based? No, it is mostly computer based, but you will find pen paper as well, I think, in Ottawa uh, और भी 1-2 सेंटर्स हैं, लेकिन हर सेंटर पेन पेपर नहीं देता है.
बट पेन पेपर के स्लॉट्स वो निकालते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं वो स्लॉट्स. बट एक्चुअली इट इज एडवाइजेबल टू टेक कंप्यूटर बेस्ड. इट इज एडवाइजेबल मतलब इसलिए क्योंकि एक क्लैरिटी भी रहती है, और राइटिंग में समटाइम्स पीपल हैव बैड राइटिंग, और फिर एक्सेंट्स होते हैं फ्रेंच में, तो कभी आपने टेढ़े मेढ़े लगा दिए. खैर वो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो आई फोकस मोर ऑन दैट थिंग. मतलब दैट इज देयर इन माई प्री रिकॉर्डेड वर्जन एज वेल. इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, खैर मैं बोलती भी रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते आपको समझ नहीं आता. माई प्री रिकॉर्डेड इज द फार बेस्टेस्ट वर्जन. मतलब वो लाइव से ज्यादा बेहतर है. सो बट दैट्स ओके. बट ओके, लाइव भी बेहतर हो सकता है इफ यू पार्टिसिपेट इन द क्लास. सो ये डिफरेंस है. अब टेफ इसलिए पॉपुलर था पहले क्योंकि सब स्टूडेंट सोचते थे यार इसमें दो ही हैं, 1 घंटे में हमको दो करने हैं. टीसीएफ में तो तीन होते हैं. तो ये सोच के हम लोग टीसीएफ पहले नहीं देते थे, और टीसीएफ इतना पॉपुलर नहीं था. लेकिन अब टीसीएफ इसलिए ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज टीसीएफ का ना फॉर्मेट थोड़ा टेफ से इजियर है. मतलब इट इज अडेप्टेबल. मतलब आप जो जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैनेजेबल होते हैं. टेफ इज अ बिट ऑन अ डिफिकल्ट साइड. फॉर एग्जाम्पल अगर राइटिंग में देर आर 2 टास्क, तो फर्स्ट टास्क यू हैव टू राइट अबाउट 80 to 100 वर्ड्स. स्टोरी राइटिंग होती है. पर स्टोरी राइटिंग में भी जज यू और वी इवैल्यूएट यू ऑन यूजिंग पास्ट टेंस. पास्ट में भी 3 टेंसेज होते हैं, तो आपको तीनों पे हम इवैल्यूएट करते हैं. टीसीएफ में भी पास्ट टेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, बट उसमें लेकिन 2 टेंसेज यूज करने होते हैं. खैर वो आगे की बात है. बट इट इज लाइक द फॉर्मेट इज रियली अडेप्टेबल. और जो 3 टास्क अगर हम कह रहे हैं स्पीकिंग में है, तो पहला टास्क इज जस्ट योर इंट्रोडक्शन. यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो पहला टास्क इंट्रोडक्शन क्या होता है, बट हाँ, सो इट इज मैनेजेबल. एंड ऑनलाइन ऑल्सो इफ यू लाइक लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आप रिसोर्सेज पूछते हो. तो टेफ के रिसोर्सेज ऑनलाइन इतने अवेलेबल नहीं है. मतलब आप आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी. खैर अब 1-2 वेबसाइट्स हैं वहाँ थोड़ा हो जाता है. बट टीसीएफ यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल. तो व्हेन somebody फील कि हम थोड़ी सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं, तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ टीचर और अ ट्रेनर टू यू नो मेरे को रिसोर्सेज दो या बताओ. तो ऐसा है. ओके, एनी क्वेश्चंस? और तो अब Yes, हम ma'am. लोग टीसीएफ ही टारगेट करेंगे. वैसे करना चाहिए. अभी टीसीएफ में भी थोड़ा इवैल्यूएशंस वगैरह होते थे, उसमें वैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाते थे. लेकिन अब उन्होंने इवैल्यूएशंस भी बंद कर दिए हैं. ये तो अब डिक्लेयर हो चुका है. बीच में थोड़ा सा था, बट इवैल्यूएशन नहीं होगा. प्लस थोड़ा सा शायद टीसीएफ में अभी चेंजेस लेकर आएंगे. आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग दैट, बट यस देयर विल बी. बट सो जितने भी मेरे अभी करंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली 1-on-1 ही है. तो मैं आई मीन इस साल आई एम encouraging them कि इस साल दे दो, बिफोर द चेंजेस कम. तो बट ठीक है. नाउ दे हैव IRCC have also declared it officially कि we 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 don't want you to just clear the exam for the heck of it. We want you to learn the language just to naturalize in the country. अब I know many students tell me, मैम यहाँ पे खुद तो लोग फ्रेंच बोलते नहीं है, जो जो इवन कैनेडियंस हैं. बट क्या करें, मैंने फ्रेंच बनाया है कंपलसरी, तो सीखनी पड़ेगी. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव? No, ma'am. ओके. Excuse me, ma'am. या आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो उसमें कहा था कि वी हैव टू डाउनलोड एनी फ्रेंच ग्रामर ऐप. इज देयर एनी स्पेसिफिक ऐप नो नो नो, और नॉट एनी? ग्रामर ऐप, डिक्शनरी. ओह तो सॉरी, यस, डिक्शनरी. या या सो वर्ड रेफरेंस है जो कि अवेलेबल है. मतलब दैट इज अ फ्री ऐप. वर्ड रेफरेंस यू कैन डाउनलोड. इफ नॉट वर्ड रेफरेंस,
there is this app called Larousse Dictionary. अगर है वो अवेलेबल तो कर लो, नहीं तो वर्ड रेफरेंस you guys can download. Larousse है, आशेत है, डिक्शनरी. Why I say this? Because क्या होगा ना, अभी क्लास में जैसे we will study, हम पढ़ाई करेंगे, तो जैसे भी फ्रेंच के वर्ड्स आएंगे ना, यू विल आस्क मैम व्हाट डज दिस मीन, मैम व्हाट डज दिस मीन, व्हाट. मैं तो बता दूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पता है. बट इफ यू विल आस्क अ टीचर, मैं बता दूंगी, आप उस वक्त तो समझ जाओगे, ओके, फिर बाद में आप भूल जाओगे. सो व्हाट आई डू इज, यू डाउनलोड डिक्शनरी ऑन योर मोबाइल, बिकॉज आजकल सब कुछ तो मोबाइल पे है ही अवेलेबल. सो यू सी अ वर्ड इन फ्रेंच, पढ़ते पढ़ते, सबकी कैमरास तो ऑफ ही हैं, तो पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, इफ यू सी एनी वर्ड, यू आर क्यूरियस, तो खुद ही सर्च करो, फ्रेंच टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, यू नो, डाउनलोड इट एंड हैंड्स ऑन करो, उस पे सीखो कैसे इजी है ना. सर्च इट, फिर आपको, फिर यू नो दैट विजुअल मेमोरी, यू विल बी एबल टू रिटेन दैट वर्ड. फिर कुछ दिन बाद आएगा, हाँ मैंने सुना हुआ है ये वर्ड, मैंने देखा हुआ है, दिस इज हाउ यू डेवलप योर वोकैबुलरी. तो मुझसे आप पूछेंगे क्लास में, मैं बता दूंगी, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे जरूर बोलती हूँ, डिक्शनरी है, देखो खुद से और बताओ, यू नो. सो एंड व्हेन यू सी अ न्यू वर्ड, राइट इट इन योर नोटबुक with its English meaning and the gender. So I will tell you कि French, of course, it's a gender-based language. ठीक है, so that is why I asked students to download the dictionary. Okay, anything else? Nothing? Okay, we can start. All of you are in, so one is in New Brunswick or Baki. Are you all in EDT time zone? Yeah, Ontario. Okay.